بلٹن کے آغاز سہولیات کی فراہمی کے لیے سندھ حکومت کے انقلابی اقدامات۔ رمضان میں 78 لاکھ خاندانوں کو آٹا 65 روپے کلو دیا جائے گا، جبکہ 50,000 سے کم آمدن والوں کو امدادی رقم دی جائے گی۔ ماہ سیام میں پیپلز بس سروس کا کرایہ نہ بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مجسٹریٹس کو بھاری جرمانے کرنے، گرفتاری کا بھی اختیار ہوگا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی زیر صدارت 4 گھنٹے طویل بیٹھک میں فیصلہ۔ سرکار نے رمضان المبارک کے مہینے میں عوام کی سہولت کے لیے اہم فیصلے کر لیے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی صدارت میں سندھ کابینہ کی 4 گھنٹے طویل بیٹھک ہوئی۔ اجلاس کے بعد وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن اور ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب نے کابینہ فیصلوں سے متعلق میڈیا کو بریفنگ دی۔ شرجیل میمن نے اعلان کیا کہ ماہ رمضان میں 72 لاکھ خاندانوں کو سستے آٹے کی فراہمی کے لیے 2,000 روپے فراہم کیے جائیں گے۔ اور جو 78 لاکھ لوگ ہیں وہ اس کرائیٹیریا میں آتے ہیں جن کی مہینے کی انکم 50,000 اور اس سے کم ہے۔ تو جو 50,000 اور اس سے کم انکم والے لوگ ہیں ان کا ڈیٹا وہ سندھ میں ٹوٹل 78 لاکھ فیملیز ہیں، تو ان کو یہ پیسے فراہم کی جائیں گی تاکہ وہ سستا آٹا خرید سکیں۔ شرجیل میمن نے بتایا کہ سندھ کابینہ نے رمضان شریف میں پیپل بس سروس کا کرایہ بڑھانے کا بھی فیصلہ کیا ہے کہ بسوں کے کرائے بڑھائے جائیں، اور وہ ایجنڈا آئٹم نہ چاہتے ہوئے ہم نے خود نے بھیجا وہ کہ بسوں کے کرائے بڑھائے جائیں۔ اور میں چند دن پہلے کہہ بھی چکا ہوں کہ ہمیں کراچی میں بسز کے کرائے بڑھانے پڑیں گے، کیونکہ جس وقت ہم نے یہ اپنے آپریٹرز کو یہ دی تھی بس سروس، تب جو ہے ڈیزل کی ریٹ اور آج کی ڈیزل کی ریٹ میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ لیکن وزیر اعلیٰ صاحب نے اور کیبنٹ کے ممبرز نے کہا کہ جی یہ رمضان کا مہینہ ہے، فی الحال اس کو ڈیفر کریں، اس کو نہ بڑھائیں۔ سندھ حکومت نے گرفتاریوں کے لیے مجسٹریٹ کے تقرر کے حوالے سے آرڈیننس جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جو گورنر سندھ کو ارسال کیا جائے گا۔ کیمرامین ساجد علی کے ساتھ عزیز جمالی، سٹی 21۔ کراچی سے سامان کی ترسیل کے لیے اندرون ملک جانے والے 1500 سے زائد مال بردار ٹرک پنجاب اور خیبر پختونخوا پولیس نے پکڑ لیے۔ کراچی گڈز کیریئر ایسوسی ایشن کے صدر نور خان نیازی کہتے ہیں کہ راستے بند کرنے کے لیے جگہ جگہ سامان سے بھرے ٹرالے لگا دیے گئے ہیں، ان پر کروڑوں کا مال لوڈ ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے۔ بات کریں گے اقتدار انور سے، بتائیے گا۔ ہم پہنچے ہیں نور خان نیازی صاحب کے پاس، جو کہ کراچی گڈز کیریئر ایسوسی ایشن کے صدر ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر انہیں اس سارے سیاسی مسائل کے اندر کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جی نور خان نیازی صاحب، کیا آپ کو شکایت ہو گئی ہے ایسی کہ آپ کی پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے؟ تھینک یو C21۔ دیکھیے ہماری پریشانی میں تو بہت زیادہ اضافہ ہو گیا، کیونکہ ہماری سینکڑوں گاڑیاں پنجاب میں روک لی گئی ہیں۔ وہ لوڈڈ گاڑیاں ہیں، سب پہ 45 ٹن وزن ہے، اس میں کیمیکل ہے، اناج ہے، خرد و نوش کی چیزیں، اور وہ خراب ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد ہمیں ڈیمریج لگتا ہے جو ہمیں ڈالروں میں پے کرنا پڑتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ جب شر پسند آتے ہیں، چونکہ ہمارا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ہم ایک ٹرانسپورٹ گڈز کیریئر ایسوسی ایشن کا میں پریزیڈنٹ ہوں، ہماری سینکڑوں گاڑیاں کھڑی ہیں اور شر پسند آ کے ہماری گاڑیوں کو توڑ دیتے ہیں۔ گاڑیوں 1.5 کروڑ کی گاڑی ہوتی ہے، وہ تباہ ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد ہمیں کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ ہمارے ڈرائیور بیچارے 2-3 دن سے روڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں، نہ کوئی ان کو کھانا دینے والا ہوتا ہے، نہ واش روم کی سہولت ہوتی ہے۔ دیکھیے پہلے بھی یہ ہماری گاڑیاں پکڑی جا رہی تھی تو ہمارا رانا ثناء اللہ صاحب کے پاس گئے تھے، 1500 سے 2000 گاڑیاں روکی ہوئی ہیں اور ابھی بھی روک رہے ہیں پورے پنجاب میں۔ تو 2000 گاڑی کا مقصد ہے یہ کھربوں روپے پہ جاتی ہیں، کیونکہ ان میں سارے کروڑوں روپے کا مال ہوتا ہے، اجناس ہوتا ہے۔ یہ تھے نور خان نیازی صاحب، کراچی گڈز کیریئر ایسوسی ایشن کے صدر، جو کہ بتا رہے تھے تقریباً 1500 سے 2000 گاڑیاں ایسی ہیں، یعنی کہ ان کے پورے ٹرالے جو کہ پنجاب حکومت اور دیگر حکومتوں نے روک لیے ہیں۔ تو یہ مطالبہ کر رہے تھے ایسا نہ کیا جائے، ایسا نہ ہو ان کے لیے کاروبار کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے۔ جی ادارہ شماریات نے صوبہ سندھ میں مردم شماری عملے کے لیے 2 ارب روپے جاری کر دیے ہیں، جبکہ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال نے مردم شماری کی مدت میں 15 روز کی توسیع کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔ مختلف اضلاع میں مردم شماری کرنے والے عملے کا احتجاج رنگ لے آیا۔ وفاقی حکومت نے سندھ میں مردم شماری کے عملے کے لیے 2 ارب روپے جاری کر دیے۔ ادارہ شماریات کی جانب سے جاری رقم تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کو منتقل کر دی گئی، جس کی تصدیق ڈائریکٹر سندھ ادارہ شماریات منور علی گھانگرو نے کر دی ہے۔ ان کے مختلف اضلاع میں لوگوں نے اسٹرائک، انیمیریٹر نے اسٹرائک بھی کیے اور پریشر بھی ڈیولپ کیا، اور وہ ان کے بالکل ٹھیک تھی بات کہ ان کو ہمیں ٹرانسپورٹیشن دینی تھی۔
बहरहाल वो दे रहा है दुरुस्त आयत। कल तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोगों ने 2 अरब रुपए के चेक्स जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट किए और कल के दिन में ही वो बैंक में जमा भी हो गए। दूसरी जानिब मरदमशुमारी का अमल सुस्त रवि का शिकार है जो मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल होता मुमकिन दिखाई नहीं देता। मुनव्वर अली घांगरो ने बताया कि वफाकी वजीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल ने मरदमशुमारी की मुद्दत में 15 रोज़ा तोसी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। लास्ट हमारी 8वीं जो CMC की मीटिंग हुई तो उसमें एक रिक्वेस्ट एजेंडा में ये भी था कि हम इस प्रोसेस को थोड़ा सा एक्सटेंड करें, लेकिन मिनिस्टर साहब ने जो है ना उसको क्लियर कट जो है ना वो ख़त्म कर लिया कि भाई हम इस प्रोसेस को आगे नहीं कर सकते हैं। सुबह सिंध में 7वीं मरदमशुमारी का अमल 3 हफ्तों से जारी है। ज़राए का कहना है कि 1 अप्रैल को सूरत हाल का जायजा लेकर वफाकी हुकूमत मरदमशुमारी की मुद्दत बढ़ाने पर गौर करेगी। कैमरामैन इब्राहिम खान के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। आगे बढ़े आपको बताएं कि 18 अप्रैल को ज़िमनी बलदियाती इंतखाबात के इनेकाद के सिलसिले में ज़िला वस्ती की 3 यूनियन कमेटियों के इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने के लिए अब तक कुल 3 उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराए गए हैं। शहर भर की तरह ज़िला वस्ती की यूनियन कमेटियों में इंतखाबी मार्का 18 अप्रैल को होगा। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के उम्मीदवारों के कागजात जमा कराने का कल आखिरी दिन है। टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन न्यू कराची की UC 4 और 13 में इलेक्शन होगा, जबकि TMC नॉर्थ नाज़िमाबाद की UC 6 पर इलेक्शन होगा। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर सेंट्रल कंवर शहजाद ने कहा है कि कागजात नामजदगी जमा कराने का कल 22 मार्च को आखिरी दिन है। रमज़ानुल मुबारक की आमद के हवाले से बात करें। रमज़ान से कबल कमिश्नर कराची ने ग़ज़ाई अजनास की कीमतों की फहरिस्त जारी कर दी है। दुकानदारों ने सरकारी कीमतों पर अमल दरामद को होल सेल में सरकारी कीमतों में फ़रोख्त से मशरूत कर दिया। कुफर टूटा खुदा करके कमिश्नर कराची को भी शहर में कीमतों पर कंट्रोल के हवाले से होश आ गया। रमजान से कबल अशिया खुर्दनोश की सरकारी कीमतों की फहरिस्त जारी कर दी। कमिश्नर कराची ने रमजान से कबल दालों, चावल, चने, बेसन और मसालाजात की सरकारी रिटेल और होलसेल कीमतों का इजरा कर दिया। शहरी इंतजामिया ने शहरियों को नाजायज मुनाफाखोरी से बचाने के लिए सरकारी कीमतें जारी कर दी, मगर इन पर अमल दरामद होता मुश्किल दिखाई देता है, क्योंकि दुकानदारों ने साफ साफ कह दिया है कि होलसेल में सरकारी कीमतों पर ग़ज़ाई अजनास मिली तो ही वो रिटेल में भी सरकारी कीमतों पर फरोख्त करेंगे। हमेशा से ये बोलते आ रहे हैं कि अगर होलसेल मार्केट में इस लिस्ट के मुताबिक हमें माल मिलेगा, बिल्कुल करेंगे, 100% करेंगे। शहरियों का कहना है कि महंगाई से बुरा हाल है, लेकिन सरकारी नक़नामे पर अमल हो जाए तो क्या ही बात है। हाँ ना, सस्ता कर ले यार, रमज़ान है, आगे रोज़े आ रहे हैं यार, महंगाई बहुत है। रमज़ान से कबल महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ऐसे मज़ीद इक़दामात की ज़रूरत है ताकि मुनाफाखोरों की हौसला शिकनी और शहरियों को सस्ती अशिया दस्तयाब हो सकें। रमज़ानुल मुबारक अंडों की कीमतों में फ़ी दर्जन 10 रुपए का इजाफा हो गया। फार्मी अंडे 250 रुपए दर्जन फरोख्त होने लगे। होलसेलर ने अंडों की कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार पोल्ट्री फार्मर्स को करार दे दिया। अंडे भी शहरियों की पहुंच से दूर होने लगे। रमजानुल मुबारक से कबल होलसेल में फार्मी अंडे 10 रुपए फी दर्जन महंगे होकर 250 रुपए दर्जन फरोख्त होने लगे। पेशावरी देसी अंडा 480 और कराची का देसी अंडा 300 रुपए दर्जन में फरोख्त हो रहा है। होलसेलर्स ने अंडों की कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार पोल्ट्री फार्म्स को दे दिया। दुकानदार कहते हैं पोल्ट्री फार्म मनमानी कीमतों पर अंडे फराहम करते हैं। भी जो है 250 रुपए का रेट है, आज 120 रुपए पेटी पे बढ़ाए हैं इन्होंने। तो बस इनके अपनी मर्जी के रेट होते हैं, फार्म वाले वो अपनी मर्जी जब होते हैं गिरा देते हैं, क्योंकि हालांकि इनको बढ़ाने की पोजीशन तो नहीं थी, बढ़ाने नहीं चाहिए थे, इन्होंने बढ़ा दिए हैं, मतलब महंगे कर दिए। तो अपनी मनमानी के रेट होते हैं, फार्मों लोग अपनी मर्जी से रेट खोलते हैं। जो शहरियों ने रमजान की आमद से कबल ही अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे पर तशवीश का इजहार और हुकूमत से मुतालबा किया है कि हुकूमत फराहम करे। कैमरामैन मोहिद रिजवी के हमरा काविश मेमन, सिटी 21। शहर में प्लास्टिक फ्लोरिंग शीट की कीमत में भी इजाफा हो गया। दुकानदारों ने कीमतों में इजाफे की वजह खाम माल महंगा होने को करार दिया है। घर बनाना पहले ही मुश्किल था, लेकिन अब सजाना भी ना रहा आसान। प्लास्टिक फ्लोरिंग शीट की कीमतें भी छूने लगी आसमां। 35 mm की प्लास्टिक शीट 120 से बढ़कर 200 और 70 mm की प्लास्टिक शीट 180 से बढ़कर 300 रुपए फिट हो गई, जबकि 84 फीट प्लास्टिक रोल 9600 से बढ़कर 16400 रुपए पर जा पहुंचा। दुकानदारों का कहना है कि 3 माह के दौरान महंगाई ने बहुत मुतासर किया है। खाम माल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से कारोबार पर बहुत फर्क पड़ा। भाई 2.5 से 3 महीने के अंदर ये समझ लें कि मिसाल के तौर पे अगर एक चीज़
9,000 की आ रही थी तो आज 16,000 रुपये के रेट हुए हैं उसके। इतनी महंगाई हो गई है 3 महीने के अंदर अंदर। रीज़न यही है कि वो कहते हैं दाना इंपोर्ट होता है, इंपोर्ट महंगी हो गई है, पेट्रोल महंगा हो गया है, हर चीज़ महंगाई की वजह से, बस यही। शहरियों का शिकवा है कि महंगाई सर चढ़कर बोल रही है, कोई ऐसी चीज नहीं जो महंगी ना हुई हो। महंगाई तो सर चढ़ के बोल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरा ख्याल में कोई ऐसी चीज़ नहीं बची जिसमें 20 से 25% इजाफा ना हुआ हो। अच्छा खासा फ़र्क है, 100% का फ़र्क है पिछले रमज़ान में और इस अभी तैयारी हो रही है इसमें। शहरी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि महंगाई पर काबू पाने के लिए फौरी इक़दामात किए जाएं। कैमरामैन गुलफाम के साथ काविश मेमन, सिटी 21। महकमे मौसमियात क्लाइमेट डेटा प्रोसेसिंग रमज़ान के चांद की पेशगोई कर दी है। रमज़ानुल मुबारक का चांद 22 मार्च बुध 29 शबानुल मुअज़्ज़म को नजर आने का कवी इम्कान है। क्लाइमेट डेटा प्रोसेसिंग सेंटर के मुताबिक चांद की पैदाइश 21 मार्च की शब 10 बजे 23 मिनट पर होगी, जबकि 22 मार्च को मतला कहीं साफ और कहीं बादल छाए रहने का इम्कान है। कराची में गुरूब सूरज 6:44 पर होने का इम्कान है। गुरूब कमर 7:32 पर होने का इम्कान है। गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद कराची में चांद की उम्र 22 घंटे 44 मिनट होगी। चांद नजर आने का दौरानिया गुरूब आफ्ताब के बाद 48 मिनट तक रहने का इम्कान है। चांद दिखाई देने के लिए इसकी उम्र 19 घंटे होना जरूरी है। हुकूमत की जानिब से रवा बरस के लिए ज़कात का निसाब जारी कर दिया गया। वजारत बराए तख़फ़ीफ़ गुरबत व समाजी तहफ़्फ़ुज़ ने साल 2023 के लिए ज़कात का निसाब जारी कर दिया। सेविंग अकाउंट में कम अज़ कम 1,03,159 रुपये रखने वालों से ही ज़कात मिन्हा की जाएगी। गुज़श्ता साल ज़कात का निसाब 88,927 रुपये था। माहिरीन ने कहा है कि सोने की कीमत में इजाफे के बाद ज़कात के निसाब में इजाफा देखा गया है। अल्लामा सूफ़ी अब्दुल क़य्यूम की दहशत गर्दों के हाथों शहादत पर मुत्तहिदा पाकिस्तान की राबता कमेटी ने अफसोस का इजहार किया है। मुतालबा किया है कि कत्ल में मुलव्वस मुल्ज़िमान को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की राबता कमेटी ने अल्लामा सूफ़ी अब्दुल क़य्यूम की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि शहर में अमन व अमान की ख़राब सूरत हाल करने के लिए एक बार फिर जराइम पेशा अनासर सर उठा रहे हैं। दहशतगर्द इस किस्म की घिनौनी कार्रवाई करके शहर का अमन तबाह करना चाहते हैं। अल्लामा सूफ़ी अब्दुल क़य्यूम की शहादत एक बड़ा सानहा है। MQM पाकिस्तान लवाहिकीन के गम में बराबर की शरीक है। मरहूम की खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। सूफ़ी अब्दुल क़य्यूम को गुलिस्तान जौहर में फायरिंग करके शहीद किया गया। MQM पाकिस्तान के मरकज़ बहादुराबाद पर सोहराब गोट से ताल्लुक़ रखने वाली अकाखेल बिरादरी के वफ़द की सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल से मुलाकात हुई है, जिसमें अकाखेल बिरादरी के दर्जनों अफराद ने MQM पाकिस्तान में शमूलियत का ऐलान किया है। बात करेंगे शुएब मुख्तार से। शुएब, बताइएगा। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल जो है MQM पाकिस्तान के मरकज़ बहादुराबाद पर अकाखेल बिरादरी का वफ़द मोहम्मद खान की सरबराही में पहुंचा था। इस सिलसिले में अकाखेल बिरादरी के वफ़द की जानिब से सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल से मुलाकात की गई है। मुलाकात में अकाखेल बिरादरी के मुतादिद अफराद की जानिब से MQM पाकिस्तान में शमूलियत का भी ऐलान किया गया है और मुस्तफ़ा कमाल को 18 मार्च के कराची के बागे जिना में होने वाले जलसे की जो है मुबारकबाद दी गई है। अकाखेल बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम तर अफराद को MQM पाकिस्तान में मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से खुश आमदीद भी कहा गया है। इस मौके पर मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि पाकिस्तान दुश्मनों की साजिशें नाकाम हो रही हैं। MQM पाकिस्तान के साए तले तमाम कौमें मुत्तहद और मुनज़्ज़म हैं। पाकिस्तान को हकीकी तरक्की की राह पर गामज़न करने के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया शुएब, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मच्छर कॉलोनी डॉक्स के इलाके में डकैतों की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद और दूसरा जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक वाक़या डकैती मुज़ाहमत पर पेश आया। बात करेंगे नुमान कियानी से। नुमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम सिविल अस्पताल के बाहर मौजूद हैं, जहां पर अब से कुछ देर कबल जो है वो इंतहाई तशवीशनाक हालत में 2 पुलिस एहलकारों को लेकर आया गया, जिन पर मच्छर कॉलोनी डॉक्स के इलाके में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग की गई, जबकि जिसमें से एक जो पुलिस एहलकार इरफान है वो शहीद हो चुका है, जबकि दूसरा पुलिस एहलकार ASI वो ज़ख्मी हालत में इस वक्त अस्पताल में मौजूद है, जिसे तिबी इमदाद दी जा रही है। इस वक्त जाए वक़ुआ पर SSP कीमाड़ी फ़िदा हुसैन जामरी दीगर पुलिस अफसरान ही मौजूद हैं, जबकि इस वक्त अस्पताल के अंदर जो ज़ख्मी
ज़ख्मी पुलिस एहलकार है, ASI है, उसके बयान कलमबंद किया जा रहा है। ज़ख्मी पुलिस एहलकार का कहना है कि एक कार सवार को 2 मुल्ज़िमान लूट रहे थे, जिस पर हम मौके पर पहुँचे, जिस पर मुल्ज़िमान ने फायरिंग कर दी, जिससे हम दोनों ज़ख्मी हो गए। मगर एक जो एहलकार इरफान था वो ज़ख्मों को इमदाद ना लाते हुए रास्ते में शहीद होकर दम तोड़ गया, जबकि दूसरे जो एहलकार है उसका इलाज, तिबी इमदाद जो है उसको जारी है। SSP की माली फ़िदा हुसैन जावरी के मुताबिक डकैती मुज़ाहमत का ये वाक़या है। एक सरकारी अफसर को जो है वो मुल्ज़िमान जो है वो लूट रहे थे, ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है, जिसके बाद जो है जाए वक़्त शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। SSP की माली फ़िदा हुसैन जावरी का कहना है कि मुल्ज़िमान जो हैं वो मच्छर कॉलोनी की तरफ जो है वो फ़रार हुए हैं, जहाँ पर छापे मारने का अमल जो है वो इस वक्त जारी है ताकि मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार किया जा सके। जी, बेहंगम पार्किंग और तजावुज़ात ने सदर के इलाके को मसाइल का गढ़ बना दिया। सिंध ताजिर इत्तेहाद के नायब सदर अरशद कुमकुम कहते हैं कि अगर सदर पर तवज्जो ना दी गई तो बहुत सारे लोगों का रोज़गार सड़क पर ही खुलेगा। कागजात की भरमार, जगह जगह खुद साख्ता पार्किंग ने मसाइल में इजाफा कर दिया। सदर के इलाके को लाकानूनियत का गढ़ करार दिया जाए तो गलत नहीं होगा। सदर की समाजी शख्सियत और सिंध ताजिर इत्तेहाद के नायब सदर अरशद कुमकुम ने सिटी न्यूज नेटवर्क से गुफ्तगू में कहा कि घंटों ट्रैफिक जाम तो सदर में मामूल की बात है। इंतजामिया ने कबूतर की तरह आंखें बंद की हुई हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कराची का हब है सदर, कारोबारी हब है, लेकिन सदर को जिस तरीके से हुक्काम बाला ने नज़रअंदाज किया है, रमज़ान की आमद है और सदर में जो तजावुज़ात का जो हाल है और जो बेहंगम ट्रैफिक की जो सूरत हाल है, उसमें मैं हुक्काम बाला से अपील करता हूं कि वो इन तमाम चीज़ों को देखें। अरशद कुमकुम बोले, लगता है अवाम रोज़े भी सड़कों पर खोलेंगे। ट्रैफिक पुलिस, KMC, DMC सब खाते पूरे कर रहे हैं। इस पे कतई तौर पे कोई इनके अहकामात नहीं है, ख़ास तौर पे सदर के हवाले से, पार्किंग के हवाले से और गैर कानूनी तजावुज़ात। तो इस वक्त ऐसा हुआ है जैसे सदर में बिल्कुल गढ़ बना हुआ है। पूरा कराची एक तरफ, सदर के हालात आप आके देखें, यहाँ से पैदल चलना भी, ख़ास तौर पे ख़वातीन का पैदल चलना दुश्वार हुआ है। सिंध ताजिर इत्तेहाद के नायब सदर बोले, रमज़ान के महीने में सदर को मरबूत ट्रैफिक प्लान की ज़रूरत है। कैमरामैन आगा रफ़ीक के साथ इक़्तिदार अनवर, सिटी 21। असातिज़ा तंजीमों ने सिंध भर में मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात और नताइज की तैयारी का काम निजी इदारे को ठेके पर देने के फैसले को मुस्तरद कर दिया। असातिज़ा ने कहा कि वो एक प्राइवेट कंपनी को इस बात की इजाज़त नहीं देंगे कि वो तलबा के इम्तहानी कॉपियों की असेसमेंट करें। मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात आउटसोर्स करने का फैसला नामंजूर। सिंध प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन, सपला और ऑल सिंध स्कूल एंड कॉलेज एसोसिएशन व दीगर असातिज़ा तंजीमों ने इम्तहानात आउटसोर्स करने का फैसला वापस लेने का मुतालबा कर दिया। ये भी वाज़े कर दिया कि अगर इम्तहानात को आउटसोर्स करवाया गया तो एहतजाज होगा और वो अदालत भी जाएंगे। एकदम से बिल्कुल अचानक, यानी एग्ज़ाम के शुरू होने से सिर्फ 2 महीने पहले ही अचानक से जो ये फैसला कर लिया गया, तो ये फैसला तो सही नहीं है हमारे बच्चों के लिए। हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के साथ जो है किसी को भी खेलने नहीं देंगे और हम इस सिलसिले में भरपूर एहतजाज करेंगे। अगर हमें कोर्ट भी जाना पड़ा तो हम कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि मज़ाकरात से मामला तय हो जाए। असातिज़ा ने ये इंकशाफ भी किया कि महकमा बोर्ड एंड यूनिवर्सिटीज़ के वज़ीर इस्माइल राहू की साहबजादी ने हैदराबाद बोर्ड में इंटर में 2nd पोजीशन हासिल की है, इसकी तहकीकात करवाई जाए। किसी गरीब की बच्चे की पोजीशन नहीं आती, एक वज़ीर की बच्ची की पोजीशन आती है। आखिर वजह क्या है? क्योंकि वहाँ पर जो चेयरमैन बोर्ड है वो भी नहीं है, वो भी एडहॉकिज़म का लगाया हुआ है, कंट्रोलर भी जो है एडहॉकिज़म पे लगाया हुआ है। लिहाजा इस वजह से शुकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं हैदराबाद बोर्ड समेत तमाम बोर्ड्स में मुस्तकिल चेयरमैन, मुस्तकिल कंट्रोलर एग्जामिनेशन लगाएं और ये आउटसोर्स के चक्कर से बाहर निकलें, सिंध के बच्चों पर रहम करें। गवर्नमेंट SM आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में मुनक्किदा हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में असातिज़ा तंजीमों के अहदेदारों ने महकमा बोर्ड्स एंड यूनिवर्सिटीज़ को भी मसाइल की जड़ करार देते हुए इसे ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपला के सदर प्रोफेसर मुनव्वर अब्बास, चेयरमैन एसोसिएशन हैदर अली, प्रोफेसर अजीज मेमन व दीगर ने शिरकत की। कैमरामैन टीम के हमरा सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। FIA की जानिब से इदारे की अंदरूनी खबरें अफशा करने से मुतालिक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है। इंक्वायरी कमेटी 14 दिन में अपनी तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करेगी। FIA हुकाम के मुताबिक ये मुशाहिदा किया गया है कि मुख्तलिफ ज़राए को महकमाना सूरत-ए-हाल और तहकीकात से मुतालिक इत्तलाआत फराहम की जा रही हैं। ये तासुर भी दिया जा रहा है
کہ FIA افسران مبینہ طور پر بدعنوانی میں ملوث ہیں۔ اس قسم کے تاثرات ادارے کی ساکھ اور تحقیقات کو سنگین خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ ایسے عوامل اور مزید تحقیقات کے کھوج لگانے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ آرٹس کونسل میں انسانی حقوق اور انصاف کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں ہندو برادری سے تعلق رکھنے والوں نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ سیمینار آرٹس کونسل آف تھر اور ہیومن رائٹس ڈپارٹمنٹ کے اشتراک سے کیا گیا۔ اس موقع پر PP سینیٹر ڈاکٹر کریم خواجہ، انسانی حقوق کارکن بھگوان داس، کرامت علی، ڈاکٹر اسحاق سومرو، PP رہنما سردار نزاکت، IK کوچنگ سینٹر اینڈ کالج کے سربراہ عمران خالد، ماہر تعلیم محمد اکبر، ڈاکٹر شام سندر، غلام محی الدین، حنین عباس، کراچی وومن گرلز کالج کی پروفیسر ذکیہ شاہ، نواز تالپور اور ڈاکٹر ایوب بلوچ نے شرکت کی۔ سیمینار سے خطاب میں مقررین نے انسانی حقوق اور پاکستان میں اس پر عمل درآمد کروانے کے ناقص نظام پر تبادلہ خیال کیا۔ اویئرنیس ہے ہیومن رائٹس کی، جب تک وہ ہوگی نہیں تب تک اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا۔ وومن جیل کے حوالے سے وومن بینک بنایا گیا، فرسٹ وومن بینک شہید رانی نے کیا، اور مجھے یاد ہے سپریم کورٹ میں پہلی خاتون جج کا تقرر شہید رانی کے دور میں ہوا۔ تو ہیومن رائٹس کے حوالے سے بہت کام ہے۔ اللہ پیپلز پارٹی کو ہمیشہ قائم و دائم سلامت رکھے۔ صرف اویئرنیس کی ضرورت ہے، بلکہ ہمیں یہ آواز اٹھانے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے اندر کسی طرح کی بھی جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے اس کو روکنے کی ضرورت ہے۔ سیمینار کے موقع پر ہندو برادری کے لیے ہولی کا بھی اہتمام کیا گیا، جس میں شرکا ہولی کے نغموں پر جھوم اٹھے۔ اس موقع پر انتظامیہ کی جانب سے تمام مہمانوں کو شیلڈز اور اسناد تقسیم کی گئی۔ کیمرامین حسن اقبال کے ساتھ نمرہ ریاست، سٹی 21۔ کاروباری حوالے سے خبر شامل کریں گے۔ روپے کی قدر میں بہتری دیکھی گئی۔ انٹر بینک میں امریکی ڈالر 11 پیسے سستا ہو کر 283 روپے 92 پیسے پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 50 روپے سے کمی سے 285 روپے 50 پیسے پر آ گیا۔ اسٹیٹ بینک رپورٹ کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر 11 پیسے کمی سے 283 روپے 92 پیسے پر بند ہوا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ گزشتہ روز ایک دن میں ڈالر 2 روپے 32 پیسے مہنگا ہوا تھا۔ دوسری جانب اوپن مارکیٹ میں ڈالر 50 پیسے کمی کے بعد 285 روپے 50 پیسے کا ہو گیا۔ آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن چیئرمین ایپٹما آصف انعام نے کہا ہے کہ خام مال کی مشکلات کی وجہ سے ملک بھر میں 50% ٹیکسٹائل کی صنعتیں بند ہو چکی ہیں۔ اب حکومت نے برآمدی شعبے کی بجلی کا 20 روپے کا رعایتی نرخ بڑھا کر 40 روپے یونٹ کر دیا ہے۔ موجودہ حالات میں اب چلتی ہوئی انڈسٹری بھی بند ہو جائے گی۔ پاکستان ٹیکسٹائل مل ایسوسی ایشن نے خدشات کا اظہار کر دیا۔ چیئرمین ایپٹما آصف انعام نے ملک کی معاشی صورتحال پر تشویش کا اظہار کر دیا۔ بولے ملک بھر میں 50% ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو چکی ہیں۔ یہ بھی کہا کہ خام مال نہ ہونے سے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو شدید دشواری کا سامنا ہے۔ آصف انعام نے کہا کہ اب حکومت نے 20 روپے فی یونٹ بجلی کا رعایتی ٹیرف واپس لے کر 40 روپے فی یونٹ کر دیا ہے، جس سے اس ریٹ پر چلتی ہوئی انڈسٹری بند ہو جائے گی۔ 2 سال پہلے پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہوئی ہے، اور وہ تمام پروجیکٹس اب آ کے لگ رہے ہیں اور چالو ہونے کے قریب ہیں۔ ان کو نہ بجلی مل رہی ہے نہ گیس مل رہی ہے، اور اگر بجلی ملے گی تو 40 روپے کی بجلی میں، تو انہیں اگر خواب میں بھی ہوتا کہ جی ہمیں 40 روپے کی ملنی ہے تو وہ لگاتے نہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہ سارے پروجیکٹ تو مطلب آپ سمجھیں کہ سکھ پروجیکٹ ہو جائیں گے چلنے سے پہلے۔ چیئرمین ایپٹما نے کہا کہ خام مال کے سلسلے میں اسٹیٹ بینک سے رابطہ ہو گیا ہے۔ امید دلائی ہے کہ خام مال کی کلیئرنس کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ ایپٹما چیئرمین نے کہا کہ ڈالر مہنگا ہونے کے ساتھ دیگر مسائل اتنے بڑھ گئے ہیں کہ انڈسٹری کیسے چلے گی۔ را مٹیریل وغیرہ کے سلسلے میں تو بہرحال ہماری اسٹیٹ بینک سے کوارڈینیشن جاری ہے۔ کچھ بہتر کیے انہوں نے صورتحال پرائیورٹی پہ لے کے، تو اسپیئر وغیرہ میں بھی انہوں نے کوشچن دیا ہے کہ جو ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ اپنے ڈالر روک کے 10% اس سے کر لیں، مگر ظاہری بات ہے جو انڈائریکٹ ایکسپورٹرز ہیں ان کو لیے تھوڑا مسئلہ بھی زیادہ ہے۔ ایپٹما چیئرمین نے کہا کہ موجودہ صورتحال پر غیر ملکی خریدار کو دیگر ممالک نے خط لکھ کر آرڈر نہ دینے پر زور دینا شروع کر دیا ہے۔ موجودہ حالات کے ٹیکسٹائل سیکٹر کی اربوں روپے کی برآمدات متاثر ہونا شروع ہو گئی ہے۔ کیمرامین قیوم شیخ کے ہمراہ اشرف خان، سٹی 21۔ کھیل کے میدان کا رخ کریں گے۔ کراچی اور بے نظیر آباد کی ٹیمیں انٹر ڈویژن رنگ بال چیمپئن شپ کے فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ دونوں ٹیموں نے سیمی فائنل میں اپنے اپنے حریف ٹیموں کو شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کیا۔
नेशनल YMCA रिंग बॉल एकेडमी में इंटर डिवीजन रिंग बॉल चैंपियनशिप में खवातीन के मुकाबले हुए। सेमीफाइनल मुकाबलों के बाद इवेंट फाइनल राउंड में पहुंच गया। कराची और बेनजीराबाद की टीमों ने फाइनल में जगह बना ली। कराची और बेनजीराबाद की टीमों ने लीग मैचेस के बाद सेमीफाइनल्स में भी हरीफ टीमों के खिलाफ अच्छे खेल का मुजाहिरा किया और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। दोनों टीमों की कप्तानों ने फाइनल में भी जीतने की भरपूर कोशिश करने का अज़म किया है। हमें बहुत खुशी है कि हम पहुंच चुके हैं। बेनजीराबाद काफ़ी अच्छी टीम है और इंजरीज तो होती रहती है, तो इसलिए उसको ज़्यादा दिल पे नहीं लेना चाहिए, लेकिन हम भी अपना बेस्ट देंगे, वो भी अपना बेस्ट देंगे, तो लेट्स सी हू विन। ये भी बेस्ट दिखा रहे हैं अपना और हम भी अपना बेस्ट दिखाएंगे। हम ये भी अच्छा करेंगे, हम भी अच्छा खेलेंगे। जो मतलब जिसका लक हुआ, जो अच्छा खेलेगा वही आगे फाइनल में जीत जाए। जीतने वाली टीमों के कोच कहते हैं कि इवेंट बहुत अच्छा है, लड़कियों के ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट्स होने चाहिए और हमारी कोशिश यही होगी फाइनल में, जब इतने मैचेस जीत के हम लोग इतना आगे तक पहुँचे हैं, तो फाइनल में भी हमारी कोशिश होगी कि विन करें। बेनजीराबाद की टीम क्वालिफाई करके फाइनल में पहुंची है और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि फाइनल भी हम जीतेंगे। हाँ, सबसे पहले हमने वहाँ लाड़काना में जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके बीच में हमने एक ट्रायल्स करवाए और जो वहाँ से सिलेक्शन हुई जिनकी, तो एक डिवीज़न की टीम बनी और उनको हम यहाँ पर लेके आए और बच्चों ने अच्छे तरीके से परफॉर्म किया। चैंपियनशिप में कराची, सक्खर, लाड़काना, बेनजीराबाद, हैदराबाद और नेशनल YMCA एकेडमी की टीमों ने हिस्सा लिया। चैंपियनशिप मुकाबलों में खिलाड़ियों के वालिदैन ने भी शिरकत की और रिंग बॉल गेम्स को एंजॉय किया। इवेंट का फाइनल कल खेला जाएगा। कैमरामैन अजलान छिपा के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। नया नाज़िमाबाद बैंकर्स कप रमज़ान क्रिकेट टूर्नामेंट आज से शुरू होगा। कौमी क्रिकेटर सरफराज अहमद, फ़हीम अशरफ, उमर अकमल और अनवर अली उमर एसोसिएट्स की नुमाइंदगी करेंगे। नया नाज़िमाबाद बैंकर्स कप रमज़ान क्रिकेट टूर्नामेंट आज से नया नाज़िमाबाद जिमखाना के सरसब्ज मैदान में बरकी कुमकुमों की रोशनी में खेला जाएगा। रात 8 बजे इफ्तिदाई मैच में उमर एसोसिएट्स की टीम सऊदी फैल्कन्स का सामना करेगी। इफ्तिदाई तकरीब के मेहमान खुशी डायरेक्टर जनरल सिंध रेंजर्स मेजर जनरल अजहर वकास होंगे। टूर्नामेंट डायरेक्टर नया नाज़िमाबाद जिमखाना के सदर सैयद मोहम्मद तलहा ने बताया कि इवेंट में 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें 3 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। और नया नाज़िमाबाद आपको पता है कि एज ए स्पोर्ट्स सिटी हमारे चेयरमैन आरिफ हबीब साहब का विजन और उसी विजन पे चलते हुए हम कर रहे हैं। और ये जो हमारा टूर्नामेंट है पूरा का पूरा, आप समझे इसमें 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जो सिर्फ कराची की नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान से आ रही हैं। सरफराज अहमद, फ़हीम अशरफ, उमर अकमल, अनवर अली और फवाद आलम समेत मारूफ कौमी और बैनुल-अक़वामी खिलाड़ी मुख्तलिफ टीमों की नुमाइंदगी करेंगे। सरफराज है, उमर अकमल है, फ़हीम अशरफ है, इस तरह के अनवर अली, बहुत सारे नाम हैं जो पूरे पाकिस्तान से आके यहाँ मेला सजाएंगे क्रिकेट का। ड्रॉस के मुताबिक ग्रुप ए में उमर एसोसिएट, हैलाडोज आइसक्रीम, अटक स्पोर्ट्स और सऊदी फैल्कन्स। ग्रुप बी में मोमिन सेड, ह्यूमैनिटी डोर्स, AZ रियल एस्टेट और कैंट वॉरियर्स। जबकि ग्रुप सी में अरहम CC, पेशन CC, रियल टाइम लाइंस और रहमान हेल्थ केयर की टीमें शामिल हैं। जावेद इकबाल, सिटी 21। रमज़ानुल मुबारक करीब आते ही फेनी और खजले की मांग में भी इजाफा हो गया है। फेनी और खजले की दुकानों पर शहरियों का रश है। बात करेंगे इकरा आवान से, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं PIB कॉलोनी में मौजूद हूँ और माह रमज़ानुल मुबारक की आमद है। माह रमज़ानुल मुबारक करीब आते ही शहरियों ने माह रमज़ानुल मुबारक की तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। जहाँ रमज़ानुल मुबारक की तैयारियों में शहरी मशगूल हुए हैं, तो वहीं शहरियों को अपनी सहरी की फ़िक्र भी शुरू हो गई है, क्योंकि अक्सर औकात जो शहरी हैं वो अपनी सहरी का आगाज़ फेनी और खजले से करते हैं। मैं इस वक्त बेकर्स पर मौजूद हूँ। यहाँ पर खजले और फेनी की मांग में कितना इजाफा हुआ है और इसकी कीमत कितनी है, मेरे साथ इस वक्त स्वीट्स के ऑनर्स मौजूद हैं, उनसे बात करती हूँ और जानती हूँ। सर, मुझे बताइएगा कि माह रमज़ान मुबारक की आमद है, फेनी और खजले की मांग में कितना इजाफा हुआ है? खजले और फेनी की मांग में जो है वो देखा जाए तो मतलब नॉर्मल उसमें मतलब है, लेकिन ये कि काफ़ी शौक़ से खाया जाता है माह रमज़ान में, क्योंकि ये आसानी से मतलब हज़म भी किया जाता है और काफ़ी लोग जो है बहुत शौक़ से इसको पसंद भी करते हैं। जाहिर सी बात है कि साल में जो है एक ही दफ़ा ये मतलब माशाल्लाह मुबारक महीना आता है, तो इसमें लोग जो है इसके एहतमाम करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इसकी कीमत कितनी है? इसकी कीमत जो है अभी फ़िलहाल 640 है, 640 रुपये किलो है इस टाइम पे। जी, तो आपने देखा कि उनका यही कहना था कि अभी जो इसकी कीमत है, जो फेनी है, वो 640 रुपये किलो जो है वो अभी उसका आगाज़ है। और इनका यही कहना है कि माह रमज़ान मुबारक करीब आते ही फेनी और खजले की मांग में इजाफा होना शुरू हो गया है। जी, बहुत शुक्रिया इकरा, आपने हमें अपडेट किया। इसके साथ ही इन स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 21।